थैंक यू। वेलकम। ऑल राइट, पंकज जी आपका हमारे शो में बेहद दिल से स्वागत है। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शो का नाम है सुरक्षित ऑफिस वापसी। आई कंप्लीटली वेलकम यू ऑन द शो टुडे। थैंक यू सो मच पंकज जी। Thank you, Diksha. It's my pleasure to be on your show. ओके, ग्रेट ग्रेट। आई लव द एनर्जी, आई लव द स्माइल। चलिए पंकज जी, अब हमें थोड़ा वृत्तांत बताइए कि अभी क्या स्थिति हमारे क्या चल रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्ट कोविड, और जितने भी एम्प्लॉयज हमारे संघर्ष कर रहे हैं, लीडर संघर्ष कर रहे हैं, तो अभी की स्थिति आपके नजरिए में क्या है? ओवर टू यू पंकज जी। See, basically, I think people are really afraid of basically they're not afraid, but that fear is always there in their minds. Whether to go to the office or whether not to go to the office, because there are advantages and disadvantages of of going to the office. Disadvantages in the sense it's only about commuting that people are worried about. The time which is taken for commutation in metro cities like Mumbai, Delhi, Bangalore. So that is only a hindrance. Otherwise, so people are really confused right now as to how the things will start, whether the office environment will be safe, or whether the office will take out proper the space management is proper, unlike what it was before. And they will take, see, medically they will take all the precautions, but whether planning wise or seating wise, whether the precautions taken are adequate or no. So people are confused right now. There is confusion. तो पंकज जी, इस कंफ्यूजन को हम दूर कैसे करें आपके नजरिए में? रीडिजाइनिंग या रीस्ट्रक्चरिंग वर्क प्लेसेस कैसे पॉसिबल है? तो आप एज अ लीडर क्या सोचते हैं उस बारे में? ओवर टू यू पंकज। क्या रीडिजाइनिंग करने की हमें पूरी तरह से जरूरत नहीं है. इफ वी टेक सम मिनिमम स्टेप्स एज टू हम सोशल डिस्टेंसेस के नॉर्म्स हम प्रॉपरली मेंटेन करें, जैसे वी पुट सम बैरियर स्क्रीन आल्सो, दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट ऑप्शंस, or we keep a certain distance between the workstation. Another thing is, we can have the circulation pattern which is there in the office. If we do it in a roadway, like one way traffic, जो two way passages hai, because the passages are absolutely narrow, so we can have a one, so the circulation pattern in an office can be monitored. Secondly, there can be adequate hygienic conditions which can prevail into the entire offices, a more hygienic prevail. Then what you can do is you can have a separate isolation rooms for people whom you feel are with the symptoms or may catch symptoms during the time. So this one more addition is very, very necessary, wherein people can be isolated in case if some symptoms are seen, and then from there they can be evacuated to the nearest hospital or to their home, wherever they wish to go, or the medical test can be carried out accordingly. So ये छोटी छोटी चीजों का हमें ख्याल रखना होगा, and I think so with that things can be managed. वंडरफुल सेड। आई थिंक रीस्ट्रक्चरिंग रीडिजाइनिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम उससे बच सकते हैं, या फिर हम लोगों को सिखा सकते हैं कि इस नॉर्म्स का पालन करें। तो पंकज जी, इसी से थोड़ा सा हमें वृत्तांत में बताइए कि किस प्रकार के पॉलिसीज या प्रोसीजर यूजुअली जब हम किसी भी एमएनसी या किसी भी हम वर्क प्लेस की बात करें तो उसमें आयल या पैसेज होता है, वेयर वी गो, एंड यू राइटली मेंशन कि अब हम दोनों जगह का हम यूनिडायरेक्शनल कर दे रादर देन बाई डायरेक्शनल, टू डायरेक्शन, राइट? तो वो स्टेप से हम लोग बचा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। बट किस प्रकार की पॉलिसी या प्रोसीजर आप सोचते हैं कि वर्क प्लेस पे होने चाहिए? ओवर टू यू पंकज। वर्क प्लेस में ये पॉलिसीज ऐसे होने चाहिए विच आर इजी टू फॉलो. कि बेसिकली आप अगर ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो एक हमारा एक माइंडसेट होता है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. So the more simpler you make the things for people to follow and to adapt, the easier it will be to make it follow or to make that discipline follow in an office. आजकल वैसे भी लोग बहुत समझदार हो चुके हैं. People are fearful about their health. People are careful about their health, and people know about what are the conditions which are prevailing outside. So everybody is ready to follow those. But sometimes we may miss those. We may have a lot of other work or some other thoughts in the mind. So कभी कभी वो miss हो जाता है because we are not used to these new normals. So जब तक वो हम adapt कर ले और हम उसको follow कर ले, it will take some time, but it is not that difficult to be followed. Okay, so छोटी छोटी बातों का अगर as you rightly said, अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल करेंगे, अगर हम डिजाइन में थोड़े से चेंजेस कर लेंगे,
माइनर हमें एक बात भूल के आपको कहने के लिए, इवन एयर कंडीशनिंग जो है विच नॉर्मली ऑफिसेज में, आई मीन इन 99% ऑफिसेज में होता है, देयर ऑल्सो वी कैन हैड सम फिल्टर्स जिसको हम हेपा फिल्टर्स कहते हैं। उस फिल्टर्स की मदद से भी हम काफी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम किल कर सकते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट एन हेल्दी एटमॉस्फेयर इन टू द एंटायर ऑफिस। ओके, वेल सेड पंकज जी, आपने अच्छे से बताया कि हम कैसे कर सकते हैं, और आपने एडिशनल पॉइंटर बताया वो फिल्टर का, जिससे हम सारे छोटे से छोटे माइक्रो पार्टिकल्स को हम दूर कर सकते हैं या मार सकते हैं, however that goes, depends on the machine that Yes. you use. But आपने एक और बात बोली, वो है डिजाइन। सो डिजाइन को हम कैसे, सपोज करिए कि हमारा क्यूबिकल स्पेस है, in the workspace we have cubicles, right? And we have an aisle or a Yes. passage where people go and to the washroom, to the lift, or XYZ reasons, right? So how are you changing the design if we talk about inside the workplace? Over to you, Pankaj ji. See, inside the workplace, if you see, there are 2-3 types of modules of workstations. अगर हम एक सिंपल वर्कस्टेशन की बात करें तो वन पॉइंट इज द लीनियर वर्कस्टेशन, जो हम आमने सामने बैठते हैं, या वी सिट इन वन लाइन, ऑल द स्टाफ सिट इन वन लाइन. अब इन दैट केस इट इज वेरी इजी. इज ईदर यू मेक ग्लास पार्टीशन और एक्रिलिक पार्टीशन, सो आपका संबंध नहीं आएगा आपके नेबर से, आपके कलीग से, और एल्स यू कैन मेक ऑल्टरनेट सीटिंग जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो. दैट इज नंबर वन क्राइटेरिया. नंबर टू, अगर आप आइसोलेटेड हो, अगर आप एक क्यूबिकल में हो, so then what you can do is you can easily pick up that position and you can shift it or stagger it in different areas in the office. So वो भी एक possible है, because उसकी जो electrical wiring होती है, that is all gone through the floor. So because of that there is a possibility कि आप उसको change कर सकते हो. काफी सारे IT ऑफिसेज में या काफी सारे बड़े ऑफिसेज में you have false flooring done. So wiring is not a major challenge over there. So अगर आप उसकी पोजीशन है जो आप 3 meters वाइड है, या जो उसके हिसाब से आप करें. सेकेंडली, इट कम्स टू कॉन्फ्रेंस रूम्स, मीटिंग रूम्स, विच कैन बी स्टैगर्ड. आजकल तो वैसे भी मीटिंग्स, जो छोटी मोटी मीटिंग्स है, वो तो वर्चुअल कॉल पे ही हो जाती है. सो फॉर कॉन्फ्रेंस रूम दैट कैन बी डन. सेकेंडली, ये होता है कि हम डोर के नॉब्स को हाथ लगाए. सो वी हैव दिस काइंड ऑफ हार्डवेयर, वी हैव दिस काइंड ऑफ things which have really come into the market, which you don't have to use it with your hand. You can always use your foot, or you can use your elbow. So ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम उसको adapt कर लेंगे, and I think so things can be useful for that. करेक्ट, राइटली सेड पंकज जी. आयल में जो आपने डिजाइन्स की बातें बोली, हम दो सीट छोड़ के कर सकते हैं. अगर आप बिना वायर के आप मूव कर सकते हो, मूवेबल है तो कर सकते हैं. अदरवाइज वायरिंग इज प्रीटी इजी फॉर एनी क्यूबिकल. इट्स अ फॉल्स सीलिंग या फॉल्स वायरिंग, आई मीन फॉल्स आर्किटेक्चर लगा होता है नीचे, जो हम चेंज कर सकते हैं. False flooring. Thank you so much for that. That's the domain that I'm learning. Okay, awesome. So great, Pankaj. अच्छा, हमें आगे चल के ये बताइए कि जैसे अभी आपने बातचीत तो की कि हम माइक्रोबियल रख सकते हैं, हम नॉब्स को छूते हैं तो वहाँ क्लीनिंग की जगह उस पे माइक्रोबियल चिपका सकते हैं, सो दैट हमें माइक्रोब्स वापस ना आए, जो आपके अनहेल्दी माइक्रोब्स है. और यूजुअली हम टच करने से इमीडिएटली सैनिटाइज करें. जो आपने सही बोला कि टच से अगर हम मुंह में लेते हैं तो ही जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, नथिंग गोइंग टू हैपन अगर हम मास्क लगाते हैं तो. बट यहाँ पे किस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल टूल्स हम लोग यूटिलाइज करें इन ऑर्डर टू मेक अ सेफर एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस? ओवर टू यू, पंकज. जैसे मोस्टली जो इन्फेक्शन फैलने का जो एक मेजर कारण होता है, इज एज यू राइटली सेड, आर पीपल वेयर दैट इज, जैसे हैंड नॉब्स होते हैं, टैप्स होते हैं. सो इन केस अभी ज्यादा करके जो ऑफिसेस में अभी चेंजेस आएंगी, wherein you will see most of the offices or most of the public areas, you will have sensor taps, which only used to be a luxury in some of the offices. But I think so that is a need of the day. So ये एक example है sensor taps. Secondly, right now you'll have sensor locks. So अगर आपका you have sensor locks, you have locks which are operated by the foot. You have taps, normal taps which are operated by the feet. So ये सब चीजें जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सिर्फ हमें इसकी मतलब द ओनर्स और द एडमिन मैनेजर्स और द एचआर टीम, whosoever is taking care of the maintenance of the offices, और जो नए ऑफिस बना रहे हैं, तो उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि यू कैन अडेप्ट टू दीज स्मॉल चेंजेस. एंड डेफिनेटली इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है, बट दिस विल सेव अ लॉट ऑफ
people from getting COVID, and that fear factor which is there within the employees to come to the office, that will somehow lower down, and that will create an awareness within the people to attend the office more. पंकज जी, एक सवाल आया है इसी के साथ साथ, जैसे हम लोग ऑफिस में होते हैं, हम जाते हैं, आपने वहां तो बता दिया अगर बजट है तो आप सेंसर्स में जाइए, अगर बजट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है या रिस्ट्रेन है बजट में, तो आप वो फुट वाले पेडल्स लगा सकते हो जो फुट से आप दबाओ और पानी आ जाता है, यू डोंट हैव टू टच द टैप, सो दैट्स गुड। बट यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है, सपोज दीक्षा जाती है ऑफिस में, शी सिट्स विद लॉट ऑफ कलीग्स, राइट, और वो कॉफी चाय पीते हैं, तो चाय मशीन को भी हम टच करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, like daily what we do in daily activities, right? So वहां पे आपका क्या राय है कि हम उसको कैसे टचलेस या कैसे हम उसे जीरो टच जोन बना सके? Over to you, Pankaj. इसमें दीक्षा मेरा ये ख्याल है ना, देयर इज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज डेवलप्ड राइट नाउ। अगर आप नए चाय के मशीन, जैसे आपने कहा, अगर इफ यू सी द टी कॉफी वेंडिंग मशीन, वहां पर भी अभी पूरा IoT बेस्ड टी कॉफी वेंडिंग मशीन आ गए, wherein you can just scan the code on your mobile, and once you scan the code, the entire menu comes on your mobile and you can order the tea or coffee from there. So that is the easiest option. So हम टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करें, टेक्नोलॉजी को यूज करें, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें। देयर इज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, और ये लोगों को लगती है कि ये बहुत महंगी है, but it is not that. If you leverage that technology in a proper way, lot of problems can be solved. I love the point जो आपने बताया कि टेक्नोलॉजी को हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, छोटी से छोटी चीजें हम टेक्नोलॉजी की मदद से आसान बना सकते हैं। बट पंकज जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी के साथ साथ, कितना समय लगता है लोगों को अडेप्शन में? जैसे दीक्षा है और आई एम नॉट अ टेक गाय, बट दो आई एम, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं टेक गाय नहीं हूँ और मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है, यार ये कैसे चलता है, पता नहीं कैसे चलेगा, और मैंने अपने ही वही की, ठीक है ना, मैं छोड़ो टेक्नोलॉजी, मैं हाथ से ही कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या है कि कैसे हम उस पर्टिकुलर चीज को एक नॉर्म बनाएं और कैसे हम लोगों को ये सक्षम करें कि आप अडेप्शन करो, और इसमें क्या हमें एक सही सुझाव आप दे पाएंगे? ओवर टू यू पंकज। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आजकल आ रही है, एंड इट इज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मेड यूजर फ्रेंडली। If it is not user friendly, it is not going to be adopted by many people. And I think so, if anybody, if you see, आज एक बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गए, if people or if humans can adapt to mobile in such a way, so obviously this is also connected with the mobile only, because आपके मोबाइल पे एक ऐप आ जाता है। So if the technology is user friendly, obviously then only it is going to be used. और जब जहां तक के वो मोबाइल पे आ रही है, that means it is obviously it can be used by everybody. So the challenge of adapting to the technology is no more, I think so, in the 22nd century which we are living in. I love this point. I resonate. Well said, Pankaj. चलिए आगे चलते हैं second last question की तरफ. What do you think as a leader is the future of work? Usually, lot of speakers come up and said hybrid हो सकता है, 20% ऑक्यूपेंसी में हम जा सकते हैं, हम शायद 6 महीने के बाद पूर्ण तरह से 100% ऑक्यूपेंसी में जाए, तो थोड़ा सा संचय, थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ा सा डिबेट चल रहा है। What's your take when we talk about future of work? Over to you, Pankaj. See, my take on the future of work depends on the industry which you are in. See, ultimately, if you go to the base point, we as humans are social animals. और जहां पर हम लोग वर्क करेंगे, जहां पर हम लोग रहते हैं, the first main point of us, we cannot work in a total isolation. We need that interaction. Now, interaction can be virtually or interaction can be personal. तो ये हमारी बेसिक नीड है, जैसे हमें हवा पानी की जरूरत होती है ना, वैसे ये इंटरेक्शन, या बिकॉज अल्टीमेटली सी इफ यू गो टू सी, वी आर सोशल एनिमल्स। अभी रही बात इंटरेक्शन की, इंटरेक्शन से लॉट ऑफ देयर इज जो मैंने बुक लिखी थी, मेरी रिवॉर्डिंग स्पेसेस जो मैंने लिखी है, इट इज नॉट येट रिलीज, बट उसमें ये काफी सारा संक्षेप में लिखा हुआ है कि हाउ इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनोवेशन, इन कोलैबोरेशन एंड इन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ आइडियाज। बिकॉज अगर आपको कुछ नया इनोवेट करना है, अगर आपको, तो पोस्ट कोविड आई थिंक सो कोलैबोरेशन इन बिटवीन पीपल is going to be a major part or will play a very important role. और ये आपको शायद ऑफिस में ही हो सकता है। See, today at least I come from a city like Mumbai which is space starved,
और जहां पर स्पेस बहुत कॉस्टली है. When I come from that kind of city, I know what is the situation today. Because normally मुंबई में जो फ्लैट्स होते हैं, you know, real estate here is very very costly. Every room is being, one room is occupied by the husband, the other room is occupied by the working wife, the third room is occupied by the children, and then the parents are there, servants are there. So it's impossibly, you know, it's very difficult and rather impossible to work from home. आप मुझे बताइए, हमारे पास अभी अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लिया है टू वर्क फ्रॉम होम, बट फॉर द फर्स्ट 1 year, आई थिंक सो लास्ट ईयर, हम सब डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के अपना काम कर रहे थे ज्यादातर. एंड डाइनिंग टेबल चेयर इज ओनली मेड टू सिट फॉर 1 hour, इट इज नॉट फॉर वर्किंग फॉर 8 hours. सो आपका अर्गोनॉमिक्स है, आपका जो कंफर्ट लेवल है, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, सो योर प्रोडक्टिविटी हैड मिनिमाइज्ड. द अदर वे इज, यू नो, जो हमारा काम 8 घंटे में होता था, आज हम 24/7 काम कर रहे हैं बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम होम. सो दैट इज अ मेजर चैलेंज. सो हर एक इंडस्ट्री का, इफ दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इट्स नॉट दैट एवरी इंडस्ट्री इज गोइंग टू फाइंड इट इजियर. अगर आपने कहा था कि पहले, आई थिंक सो टीसीएस या इन्फोसिस किसी ने कहा था कि हम 2025 तक ऑफिस ही नहीं खोलेंगे और इट विल बी वर्क फ्रॉम होम. बट राइट नाउ इफ यू सी इन सिटीज लाइक बैंगलोर, दे आर अगेन थिंकिंग ऑफ रीओपनिंग द ऑफिस. और अभी वो लोग बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग इन द लैंग्वेज की 6 महीने में ऑफिस खोल देंगे. व्हाई? बिकॉज पीपल एंजॉयड इट. व्हेन इट वाज अ चेंज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, पीपल एंजॉयड इट बिकॉज योर कम्यूटिंग टाइम गॉट सब्ट्रैक्टेड. जो हमें 2-2, 2.5 घंटे हमारे ऑफिस पहुंचने में, या मिनिमम दिल्ली में 1 घंटा लगता है या 1.5 घंटे लगता है, 1.5 hour, दैट एंटायरली 3 hours of your time, minimum 3 hours got subtracted, and you thought that you could give those 3 hours to your family and spend quality time. But actually वैसे हुआ नहीं. In fact, फैमिली के सामने तो आप थे, बट आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे थे. So you are only present physically over there. So you know there are, so ये debatable point इसके लिए हो रहा है कि some people, if I am from the logistics industry, if I am from the construction industry, if I am from you know, automobile industry, मेरा घर से बैठ के काम नहीं होगा. It's only IT industry, ठीक है, मेरा काम हो रहा है and everything. So IT is a boon, especially in COVID times. It came out to be a boon because हमारी दुनिया चल रही है. Because of IT, at least जो मिनिमम जितना चालू होना चाहिए उतना हो रहा है. बट जो ग्राउंड वर्क है, जो हमें ग्राउंड पे आके काम करना है, तो वी कैन नॉट डू दैट. उसके लिए हमें बाहर निकलना ही होगा. एंड इवन IT पीपल, आप अगर सोचे तो, यू नो, हाइब्रिड जो वर्क मॉडल है, दैट मे वर्क इन सम इंडस्ट्री. इन IT, जैसे आपने वीक में, यू नो, 3 दिन आपने ऑफिस में काम कर लिया, 2 दिन आपने कहीं रिमोट से काम कर लिया. सो देयर इज एन ऑप्शन विच इज अराइविंग. नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि ठीक है, हमें छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, वी कैन वर्क फ्रॉम होम. अगर मेरा 1 घंटे का काम है तो बाकी के 6 घंटे में काम कर लूंगा. सो यू नो, COVID has got out many options from us now, and it has made us realize, you know, that we are going back to our drawing boards now to just see how COVID has changed the entire world. And obviously COVID will change the world in a big way. True. But this is my take on how offices will remain. Awesome. Yes, Pankaj. I love the word when you said कि हम डाइनिंग टेबल से सारा कुछ काम कर रहे हैं एंड वी आर फिजिकली प्रेजेंट, और सोल हमारा एक्चुअली काम में रहता है. हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं माँ बाप के सामने या घर वालों के सामने, बट वी आर नॉट रियली देयर. आई लव इट. इज अ टचिंग पॉइंट. आई मीन आई कंप्लीटली रेजोनेट. आई थिंक यू आर द फर्स्ट स्पीकर हु सेड दिस ऑन दिस शो दैट वी आर फिजिकली प्रेजेंट, सोल तो कहीं और ही होता है. आपने बिल्कुल सही बोला. प्रोडक्टिविटी का काफी नुकसान है. इवन दो, आई टेल यू व्हाट द सच्चाई इज, इवन दो IT सेक्टर में भी अगर हम बात करें तो सर्वर देखने के लिए somebody has to be there. सर्वर will not operate just like from ऐसे ही ऑपरेट नहीं करेगा. सर्वर के लिए वहां पे ऑप्स के बंदे चाहिए, DevOps के बंदे चाहिए to make everything possible. So I think things are very much required, and you said each and every point is absolutely correct, Pankaj ji. चलिए पंकज जी, अब लास्ट शो के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं. आप हमें थोड़ी सी मोटिवेशनल इंस्पिरेशन आपको जो लगता है वो हमारे दर्शकों और हमारे सभी लोगों से साझा करें, ताकि वो लोग इंस्पायर हो सके कि जिस भी स्थिति में आज हम हैं, चाहे हम घर से काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्टिविटी चला जा रहा है, हमारा कंफर्टेबिलिटी जा रहा है, बट हम दोबारा से सब कुछ नए तरीके से शुरू कर सकते हैं. ओवर टू यू पंकज जी.
या दीक्षा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि कोविड इज गोइंग टू रिमेन देयर, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू अडॉप्ट एंड वी नीड टू टेक द प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस। हमें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द जो भी सरकार सेवाएं मुहैया करा रही है वो हमें जल्द से जल्द देनी चाहिए। वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ द गवर्नमेंट, वी नीड टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ हेल्थ, वी नीड टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ द ऑफिस। ठीक है, सो दिस इज, अभी आज एक म्यूटेंट है हमारे पास में, कल और 2 म्यूटेंट आएंगे। सो दिस इज गोइंग टू कम एंड इट नाउ इट इज गोइंग टू स्टे। आई थिंक, ये मेरा व्यू है कि इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द डिसीजेस लाइक मलेरिया और टाइफॉइड और समथिंग लाइक दैट, वैसे कोविड भी एक डिसीज करके रह जाएगा। सो नाउ कंप्लीटली एलिमिनेट होना कोविड का हमारी जिंदगी से इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम किस तरह से वैक्सीनेशन लेते हैं, दुनिया किस तरफ से आगे बढ़ रही है, हम अलग अलग म्यूटेंट्स का कैसे हमारे साइंटिस्ट उसको काउंटर अटैक करते हैं, ये सब आगे की बातें हैं। बट एज इंडिविजुअल्स, एज responsible citizens of any nation, and as responsible parents or responsible you can say colleagues to our organization also, we should see to it कि हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, because हमारे काम की वजह से किसी और का काम रुकेगा। So ultimately हमारा जो ख्याल है कि we are ultimately working for a nation and it's for the nation to grow. सो हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो ख्याल है कि हमें इंडिया को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, तो इसमें हमारा भी एक छोटा सा हिस्सा है और वो हम उसकी तरफ प्रयास करें। सो ये मायने नहीं रखता कि हम घर पे बैठ के काम कर रहे हैं या ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। हमारा ये तो मेरा एक ख्याल था कि ऑफिस में बैठ के आप ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं। अल्टीमेटली हमें काम करने की जरूरत है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। COVID is something which is not to be feared of. We have to counter attack it. सभी proper precautions ले, सभी ऑफिस जाए, ऑफिस में सभी लोग अगर अपना ख्याल रखेंगे, everybody takes care of the other person and sees to it proper discipline maintain हो। अगर हम ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपरली प्लानिंग करें और हम आउटपुट दे जैसे हम पहले देते थे, आई थिंक सो थिंग्स वुड बी नॉर्मल। सो यही मेरा ख्याल है, इट्स टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, वी शुड नॉट स्टॉप। Well said, पंकज, we should not stop. क्राइम पेट्रोल में दिखाते ना, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। उसी तरीके से आपने बड़े उम्दा तरीके से हमें बोले कि मास्क पहने रहिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, और जो भी नॉर्म्स आपको दिए जा रहे हैं उसका डेफिनेटली पालन करिए। उससे आप सुरक्षित रहेंगे और डरना बिल्कुल नहीं है। कोविड रहे या ना रहे, हम हर्ड इम्यूनिटी में जाएं, हम वैक्सीनेट हो, वही हमारे लिए रामबाण या ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। थैंक यू सो मच पंकज जी, आपका शो में आने के लिए बहुत बेहद शुक्रिया, और आपसे बहुत बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच पंकज। Thank you Diksha, thanks for calling me to your show, and it was wonderful, it was amazing, and I especially like the questions which were really interviewing and were literally brainstorming and very well connected to the present situation. So thank you, I could be a part of it. Thank you Pankaj. Jai Hind, take care. Jai Hind.